خبر شامل کرتے ہیں ڈھڑکی سے۔ ضلع گھوٹکی کی قومی اسمبلی کی 2 نشستوں اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں پر الیکشن مہم کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار آمنے سامنے ہوں گے۔ مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو سے۔ جی علی رضا، بتائیے کہ کیا تفصیلات ہیں الیکشن کے حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں جہاں پورے پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی جاری ہے، تو وہیں سندھ کے ضلع گھوٹکی میں بھی الیکشن مہم تیز کر دی گئی ہے۔ ضلع گھوٹکی میں قومی اسمبلی کی 2 نشستیں جبکہ صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں پر آزاد امیدوار اور پیپلز پارٹی کے امیدوار آمنے سامنے ہوں گے۔ ضلع گھوٹکی میں قومی اسمبلی کی نشست 198 پر ووٹر کی جو کل تعداد ہے وہ 4,55,286 ہے، اور اس میں مردوں کی جو تعداد ہے وہ 2,46,755 ہے، اور خواتین کی جو تعداد ہے وہ 2,08,531 ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ضلع گھوٹکی میں قومی اسمبلی کی نشست 198 پر پیپلز پارٹی کی جانب سے میر خالد احمد خان لنڈ اور ان کے مد مقابل جو ہے نا میاں عبدالحق عرف میاں مٹھو ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی نشست PS 19 پر پیپلز پارٹی کے نام سے تو امیدوار سابقہ MP سردار عبدالباری پتافی اور ان کے مد مقابل جو ہے وہ نادر اکمل خان نگاری ہیں، جس میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ضلع گھوٹکی میں صوبائی اسمبلی کے نشست PS 18 پر جو ہے نا پیپلز پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار سابقہ MPA جو کہ تحریک انصاف میں تھے، بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا، وہ شہریار خان شر ہیں، اور ان کے جو مد مقابلے پیپلز پارٹی کے سابق رکن اسمبلی وہ جہاں مہتاب حسین ڈھیر ہیں، جو ان کے ساتھ آزاد امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو پولنگ اسٹیشن کی تعداد ہے وہ ٹوٹل 363 ہیں، اس میں جو ہیں 47 جو ہیں نارمل ہے، 140 جو ہیں وہ انتہائی حساس ہیں، اور 176 کو جو ہے حساس قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر گھوٹکی نے سیکورٹی کے سخت انتظامات کے لیے رینجرز اور آرمی کو خط لکھ دیا ہے۔ جی خوشاب سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف با محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق خوشاب سے سجرہ خاندان نے اپنی سجرہ برادری اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار حلقہ NA 87 سابقہ MNA ملک شاکر بشیر ایوان اور حلقہ PP 82 سے سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف ایوان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق خوشاب سے سجرہ برادری کی سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی محمد شریف سجرہ، حاجی علی شیر سجرہ، والد امیر موتیا اور حاجی فتح محمد سجرہ نے ایک شاندار جلسے کا اہتمام کیا، جس میں امیدوار حلقہ PP 82 ملک محمد آصف بھا اور حلقہ NA 87 ملک شاکر بشیر ایوان کے صاحبزادے ملک سعد بشیر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر حاجی محمد شریف سجرہ، ملک حاجی فتح محمد سجرہ، علی شیر ولد امیر موتیلا نے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار حلقہ NA 87 ملک شاکر بشیر ایوان اور حلقہ PP 82 ملک محمد آصف بھا کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو ہماری وارڈ کے نتائج سجرہ خاندان اور ان کے گروپ میں ملک شاکر بشیر ایوان اور سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف بھا سے دلی محبت کا ثبوت دیں گے۔ سمندری ریسکیو 1122 کی الیکشن ڈیوٹی انچارج ریسکیو 1122 امتیاز شریف نے مختلف فلاحی الیکشن میں ڈیوٹی کرنے پر حلف لیا۔ ریسکیو کی ممبر کی حیثیت سے کسی بھی سیاسی وابستگی، ذات پات، رنگ و نسل اور مذہبی تعصب سے بالاتر ہو کر خدمت سر انجام دیں گے۔ کسی بھی قسم کے سانحے یا حادثے کی صورت میں ریسکیو 1122 کی طرف سے دی جانے والی تربیت اور ہدایت کے مطابق ایمرجنسی متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ اس دوران کسی بھی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہ ہونے اور اپنے فرائض منصبی خلوص نیت، پوری لگن اور دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے کے حوالے سے حلف لیا گیا۔ تحصیل رپورٹر فیاض رسول مرزا آن نیوز لاہور۔ پہاڑیاں والی کے علاقہ چک ظاہر میں پاور شو پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعالیٰ سے ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار NA 68 MPA 41 آصف بشیر بھاگڑ جلسہ گاہ چک ظاہر میں پہنچ گئے۔ پہلے چک ظاہر میں پھولوں کی برسات کرتے ہوئے ڈھول اور استباضی سے جلسہ گاہ میں لایا گیا اور دوست عوام نے بھرپور استقبال کیا۔ استقبال کرنے میں شامل دوستوں بھائیوں میں شامل جناب توحید رضا وڑائچ، عمران افضل وڑائچ، محمد اکرم وڑائچ، علی حسنین وڑائچ، عدیل وڑائچ، مرزا علی اصغر علی، مرزا مدثر رضا بابر بٹ، فیاض مغل راجہ، علی رضا عاشق حسین گولڑی، مرزا امجد
ابراہیم مرزا طیب رسول اور فیاض رسول مرزا شامل تھے۔ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے آصف بشیر بھاگٹ نے کہا ہے کہ گاؤں میں گلیوں نالیوں کا کام کرانا بڑا کام نہیں ہوتا، کام وہ ہوتا ہے جو گاؤں میں اسکول، کالج یا ہسپتال بنایا جائے۔ میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر چک ظاہر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دوں گا۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈولیار سے۔ سمیع اللہ سنی کی رپورٹ کے مطابق 8 فروری کے انتخاب کے لیے سیاسی جماعتوں نے اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے عوام سے میل ملاپ کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ حلقہ PS 58 پی پی کے نامزد امیدوار سید ضیاء عباس شاہ رضوی کا ٹنڈولیار کے مختلف علاقوں میں سرگرمیاں تیز کر دی۔ تعلقہ جھنڈو مری کے پیارو لوند اور بھیل کالونی میں آمد اقلیتی برادری کے موہن منورام، ڈاکٹر روی، کامریڈ ریجو، شگن ہیرانی، دودارام گویر اور دیگر بھیل برادری کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا اور سندھ کی ثقافت اجرکیں پہنائی گئی، پھول پہنا کر جیے بھٹو کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر جلسہ عام سے سید ضیاء عباس شاہ نے خطاب کرتے کہا کہ مجھے یہ آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت دیکھ کر یہ یقین ہو گیا ہے کہ 8 فروری کا دن مخالفین کی شکست اور پیپلز پارٹی کی کامیابی کا دن ہوگا اور مل کر کامیابی کا جشن منائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھوانہ سے۔ ہمارے نمائندہ حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی گدی دربار عالیہ پیر آف سیال شریف کی سجادہ نشین گدی نشین نے انشاءاللہ MPA حلقہ PP 97 میں محترمہ سلیم بی بی بھروانہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سیالوی بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے مرشد کے حکم پر اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور حق سچ کا ساتھ دیں۔ سلیم بی بی نے پہلے بھی حلقے کی عوام کی خدمت کی ہے اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی منتخب ہو کر علاقہ کی خدمت کریں گے۔ آپ PTI کو ووٹ دے کر کامیاب فرمائیں، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سجادہ نشین سیال شریف اپنے بڑے بھائی حضرت صاحب کی خدمت میں موجود ہوں اور آپ کا حکم یہ ہے کہ اس تمام پیر بھائی PTI کے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈولیار سے۔ سمیع اللہ سنی کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈولیار جنرل الیکشن سیکیورٹی پلان جنرل الیکشن 2024 کے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ضلع ٹنڈولیار میں 2341 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ضلع ٹنڈولیار کو 3 زونز، 12 سیکٹریٹس اور 24 سب سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زون کی سپرویژن DSP رینک کے افسر کریں گے۔ سب سیکٹرز کی سپرویژن متعلقہ SHOs کریں گے۔ حفاظتی انتظامات کو مؤثر بنانے کے لیے 28 گاڑیوں اور 180 اہلکاروں پر مشتمل QRF تشکیل دے دی گئی۔ کوئک رسپانس فورس ہنگامی صورتحال میں فوری طلب کی جائے گی۔ ضلع میں DSPs اور SHOs کی 26 موبائلز ہوں گی۔ موبائلز وینوں میں 250 جوان آن روڈ رہیں گے۔ SSP آفس میں الیکشن سیل قائم کر دیا گیا۔ الیکشن سیل 24 گھنٹے کام جاری۔ الیکشن سیل آفس کو 8 فروری کے دن مرکزی کنٹرول روم کی حیثیت حاصل ہوگی۔ لمحہ بلمحہ صورتحال کو مانیٹر کیا جائے گا۔ کوئک رسپانس فورس QRF کنٹرول روم بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ QRF کے امور کو مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول سیل قائم۔ الیکشن سال 2024 کے دوران عارضی قائم کردہ 33 پولنگ اسٹیشنز کی تعداد کل 7 ہوگی۔ عام انتخابات کے دوران مجموعی طور پر 331 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے، جن میں 146 نارمل، 85 حساس، 100 انتہائی حساس قرار دے دیے گئے ہیں۔ ترجمان پولیس۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ پشاور کا علاقہ بخشو پول سے تعلق رکھنے والا پاکستان پیپلز پارٹی کا سابقہ MPA ملک تماش خان PK 74 سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ ملک تماش خان کا کہنا ہے کہ میں پہلے بھی MPA رہ چکا ہوں۔ میں نے PK 74 میں بہت سے کام کیے ہیں۔ مجھے اپنے حلقے کے مسائل کی حوالے سے پوری جانکاری ہے اور انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آئی تو اپنے PK 74 کے مسائل کو میں حل کرنے کے لیے مثبت قدم اٹھاؤں گا۔ اپنے PK 74 کی عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کروں گا۔ آگے مزید جانتے ہیں آن نیوز کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ بات اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ
तकरीबन काफ़ी अरसे से हम सियासत से वास्ता रखते हैं और हमारे जो PK 74 का जो सूबाई हलका है, इस हलके से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं MPA उम्मीदवार हूँ और मैं 5 साल MPA रह चुका हूँ 2008 से 2013 तक, और उसमें काफ़ी तरक्याती काम हमने किए और ख़ास कर में हमने एजुकेशन को काफ़ी तरजीह दी थी। उसमें हमने बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी और मैंने नागुमान डिग्री कॉलेजेस और बहुत से प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड किया, प्राइमरी टू मिडल, मिडल टू हाई और हाई टू हायर। तो ये फैसिलिटीज़ एजुकेशन में हमने दी है। और आने वाला जो प्रोग्राम है इसमें ख़ास कर मैंने ये जो दूसरी प्रायोरिटी है हेल्थ की, तो ये पसमानदा इलाका है और उसमें अक्सर लोगों को ये हेल्थ से काफ़ी दूर है। ये फैसिलिटीज़ इन लोगों को इंशाल्लाह हमारे आने वाले हुकूमत में प्रायोरिटी बेस पर हम देंगे। और दूसरी बात है कि ये ज़रूरी एरिया का ज़्यादातर ज़रूरी ज़मीन, इसमें लोगों को ज़मींदारों को काफ़ी आपाशी का मसला होता है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इस ख़ास कर आपाशी का बंदोबस्त भी कर ले। और इसमें बाकी मैंने देखा है लोगों को जो ख़ास कर नौकरी और मुख्तलिफ ब्रेक पेमेंट की जो मसाइल है, ड्रेन वगैरह, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि सबके मसाइल नंबरवार हल कर ले। ये अवाम हमारे जो साथी है, हमारे दोस्त है, ये लोग जो हम पे इतना एतमाद करते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये आने वाला नया मंशूर है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब के इस मंशूर पे हमें भी पूरा एतमाद है कि 30 लाख घर, और उसमें मज़दूर को अलग कार्ड मिलेगा, किसान को अलग कार्ड मिलेगा। और उसमें सबसे अच्छी बात यह भी है कि ये जो न्यू जनरेशन है उसमें फ्री एजुकेशन और माहाना वजीफ़ा इन साथियों को मिलेगा। PK 74 की आवाम के लिए क्या मैसेज है सर? बात इस तरह के ये सबसे पहले तो मैं अपने इस हलके में सारी उम्र मैंने इधर ही गुजारी है, तो लोग आवाम के जो मसाइल है ग्राउंड रियलिटी पर ख़ास कर लोगों को जो ज़रूरियात है उस मुताबिक लोगों के मसाइल सुन के उस पर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, उन लोगों के मसाइल हल करेंगे। और इसके अलावा उन लोगों को ये पता भी है कि मैं इधर अपनी जो रिहाइश है तो इसी हलके में, और ये मसाइल मुझे उन लोगों के कहने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मुझे सब मसाइल का पता है। अल्लाह हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और हमें कामयाबी दे, तो उन लोगों के कहने के अलावा भी हमें इन चीज़ों पे अबूर हासिल है कि यहाँ मसाइल क्या है और किस तरह हल करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले कल के लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। आवाम को भी हमारी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले कल के लिए अच्छे फैसले करें ताकि आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तमाम सहूलियात मिल सके। खबर शामिल करते हैं जंग से। पुलिस माह जनवरी कारकर्दगी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में माह जनवरी में चोरी डकैती में मुलविस मुलजमान के कब्जा से 3 करोड़ 70 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने माल मसरूका नकदी उनके मालिकान के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में माह जनवरी में चोरी डकैती में मुलविस मुलजमान के कब्जे से 3 करोड़ 70 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। 12 चोर डकैत गैंग्स के 35 मुलजमान को गिरफ्तार करके 99,22,000 रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। माह जनवरी में नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ 45 मुकदमात का अंदराज किया गया, जबकि क्रैकडाउन करते हुए पोस्त 600 किलोग्राम, चर्स 29 किलोग्राम और शराब 810 लीटर बरामद की गई। माह जनवरी में 125 इश्तिहारी मुजरमान जबकि 64 अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जंग पुलिस ने माह जनवरी में 100 मुकदमात की यकसोई अमल में लाते हुए 45 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जा से 5 अदद कारें मालियती 96 लाख रुपए, ट्रैक्टर ट्राली 2 अदद मालियती 95 लाख रुपए, 57 मोटरसाइकिलें
मलीती 64,66,000, माल मवेशी मलीती 19 लाख रुपए, नकदी बरामदगी 20 लाख रुपए, सोलर प्लेट्स मलीती 35 लाख रुपए, 4 रिक्शा मलीती 8 लाख रुपए, जबकि दीगर माल मसरूका में मोबाइल फोन्स, मोटर बिजली, सोलर सिस्टम, हीटर, इंजन वगैरह मलीती 40 लाख रुपए बरामद किया गया। DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने जराइम पेशा नासर से बरामद होने वाला माल मसरूका नकदी पुलिस लाइन्स में उनके मालिकान के हवाले किया। मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए DPO का कहना था कि शहरियों की जानो माल, इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जिला भर में क्राइम पॉकेट्स पर नाकाबंदी का अमल शुरू किया गया है। इसके अलावा शहर भर में पॉकेट्स ड्यूटी लगाई गई हैं। मौसर चेकिंग के जरिए जराइम की रोकथाम के साथ शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जा सके। जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयों और माल मसरूका की बरामदगी पर शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए DPO का शुक्रिया अदा किया। DPO ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया है उसकी तफसीलात भी शेयर कर दी गई हैं और जो इश्तिहारी मुजरमान हैं उन पर भी जो है वो क्रैकडाउन जारी है। 150 से ज़ायद इश्तिहारी मुजरमान जो है जनवरी के महीने में गिरफ्तार किए गए हैं। 75 से ज़ायद अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए हैं और हमने जो अपने हलफ लिया हुआ है शहरियों की जानों माल और आबरू की हिफाजत का, उसके तहत जो है जहांग पुलिस की जो टीम है इसमें हमारे जो SP इन्वेस्टिगेशन है, हमारे जो SDPO हैं, हमारे जो SHO और इनके नीचे टीमें काम कर रही हैं और इसके अलावा जो हमारी CIA और जो AVLS अभी हमने नया यूनिट कायम किया है उनकी ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। 2 से 3 वीक के अंदर उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त कार्रवाई करके ये शहरियों की जो है वो लूटी पुटी रकम और उनका माल मसरूका जो है वो बरामद करके एक सादा और पुरकार सेरेमनी में उनको हैंड ओवर किया है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इस सेरेमनी के हवाले से जिंदा दिलाने जंग को इस बात की यकीन दिलानी करवाते हैं कि हम इंशाअल्लाह दयानतदारी से अपने फ़राइज़ मंसबी को सर अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है और हम इंशाअल्लाह शहरियों की ये खिदमत का सफ़र जारी और सारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल करते हैं मोरखुंडा से। मेहर मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक जलसा कोट बेनी दास फरमान गुज्जर मेंबर ने जलसे का इनेकाद किया, जिसमें राना राकिब, राना रफ़ीक, राना इरफान, राना इजाज, राना लियाकत, राना मुबारक, राना काशिफ, राना आदिल, राना रियासत, राना रमज़ान ठेकेदार ने डॉक्टर शीज़रा मनसब खरल MNA 112, आगा अली हैदर MPA 135 की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और डॉक्टर शीज़रा मनसब खरल ने राना बरादरी गुज्जर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। अहले कोट बेनी दास ने मुतफ़िका तौर पर मुस्लिम लीग नून डॉक्टर शीज़रा मनसब अली खरल MNA NA 112, आगा अली हैदर उम्मीदवार MPA हल्का 135 के मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। गुज्जर बरादरी, राना बरादरी, कोट के दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने बरादरी समेत डॉक्टर शीज़रा मनसब खरल और आगा अली हैदर खान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। MPA आगा अली हैदर का कहना था कि इक़्तिदार में आकर आपका हर जायज़ काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर शीज़रा मनसब का कहना था कि नवाज शरीफ ने ननकाना साहब के लिए जो पैकेज का ऐलान किया है इंशाअल्लाह तमाम काम शुरू किए जाएंगे। तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नया तरक्की वाला दौर शुरू करेंगे। डॉक्टर शीज़रा मनसब का कहना था कि नवाज शरीफ जब भी आता है मुल्क खुशहाल होता है, मुल्क में रोज़गार आम होता है, इसीलिए नवाज शरीफ को वोट दें, शेर को वोट दें, तरक्की की वोट दें, अपना मुस्तकबिल संवारे। कोट बेनी दास से इंशाल्लाह शेर जीतेगा। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ बिजनेसमैन मेहर यासर ऑफ शेरपुर ने मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राना आरिफ इकबाल हरना और अहले मोहल्ला के नून लीगी वर्कर्स के एजाज़ में शानदार तकरीब रखी, जिसमें तमाम हाज़रीन को लजीज नाश्ता करवाया गया। कन्वेंशन से राना आरिफ इकबाल हरना ने कहा है कि नवाज शरीफ 8 फरवरी को नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। मैंने हल्का की खिदमत इबादत समझ कर की है। आज मुखालफिन वोट मांगने के लिए पैसों का सहारा ले रहे हैं, मगर मेरे हल्का की अवाम ने हमेशा खिदमत करने वाले को वोट दिया है। इस मौका पर मेहर यासर ने कहा है कि हमारे इलाका में तरक्याती काम हमेशा नून लीग ने करवाए हैं, लिहाजा अहले शेरपुर फिका तौर पर नवाज शरीफ ने वोट देंगे। तकरीब से चौधरी फजल महमूद, रिजवान ताहर एडवोकेट, मलक कैसर अब्बास, मलक मुराद अली, वसीम खोकर, मियां अनवर जवेद, मलक बिलाल आशिक, शेख आसिफ मसूद, हाफिज अरशद, चौधरी खालिद काउंसलर, चौधरी आलमगीर, कामरान सुलहरी ने भी शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं मरीदके से। मरीदके का रुख करते हैं मरीदके का, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदके के नवाही गांव जोयावाला में मुस्लिम लीग नून का तारीखी साज जलसा अवाम का जमगफीर जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरीदके के नवाही गांव जोयावाला एक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें NA 113 के उम्मीदवार राना अहमद अतीक अनवर और PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क ने भरपूर शिरकत की। तफसील मरीदके से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी, तफसीलात के मुताबिक जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में मरीदके के नवाही गांव जोयावाला में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा हुआ। जलसा चौधरी अमानत भट्टी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी आसफ अली भट्टी, खावर अब्बास भट्टी, अजमल भट्टी, हाजी साजद भट्टी, अब्बास भट्टी, काशिफ भट्टी, तालब हुसैन भट्टी, कासफ भट्टी नंबरदार, सरफराज भट्टी नंबरदार की क़यादत में करवाया गया। जलसे में NA 113 राना अहमद अतीक अनवर और PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी अरशद विरक ने भरपूर शिरकत की। गुलपाशी और ढोल की थाप पर मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। मेहमान खसूसी में चौधरी अमजद गोपेरा, राबनवाज चद्दड़ और शमून चीमा शामिल थे। जलसे के शुरका से खिताब करते हुए NA 113 के उम्मीदवार राना अहमद अतीक अनवर और PP 137 के सूबाई उम्मीदवार चौधरी अरशद विरक का कहना था कि नून लीग वाहद पार्टी है जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर मियां नवाज शरीफ को कामयाब बनाएं। शेर की कामयाबी ही अवाम की कामयाबी है। जलसे में बच्चे बड़े बूढ़ों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। आखिर पर गांव में गैस की फराहमी और ग्राउंड बनाने का भी ऐलान किया गया। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीदके। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की बड़ी कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मियारी खुराक की फराहमी के लिए कोशां। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद की हिदायत पर और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन शेखुपुरा गुलाम साबर की ज़रिए निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीम ने बरवकत कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियाँ पकड़ी, जिसका इस्तेमाल इंसानी खुराक में होना था। बरवकत कार्रवाई करते हुए शेखुपुरा की टीम ने 790 किलो मुर्दा मुर्गियाँ मौका पर तल्फ करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। एक मुलजिम को गिरफ्तार करवा कर गाड़ी हवाले पुलिस कर दी। सेहत दुश्मन अनासर पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। रहमानी बरादरी पाकिस्तान के मरकजी सदर सेठ गुलाम रसूल, मरकजी सेक्रेटरी इतलात व नशरियात हाजी मोहम्मद यासीन करमा वाले रहमानी बरादरी शेखुपुरा के सदर सेठ नईम मुनव्वर ने रहमानी बरादरी पाकिस्तान के सेक्रेटरीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने ननकाना साहब जलसे में जो ज़ुबान रहमानी बरादरी के बारे में इस्तेमाल की है, पूरी रहमानी बरादरी ने उन अल्फाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन 2024 के सिलसिले कुछ मामलात जिहड़े ने वो दरपेश आए ने जिहदे वास्ते साढ़े मरकजी तंजीम के सदर जनाब सेठ गुलाम रसूल साहब रहमानी बरादरी और जनाब सेठ नईम साहब सदर सिटी शेखुपुरा रहमानी बरादरी मौजूद ने। बंदा नचीज़ मोहम्मद यासीन मरकजी तंजीम रहमानी बरादरी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इतलात ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੇਠ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਸੇਠ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਮ ਇਸਤਕਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਗੋਗਾ ਸੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ करना। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी सदर सोशल वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम PTI के उम्मीदवारों को कामयाब करके सियासी इंतकाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देंगे। करप्ट अनासर की मुल्की सियासत में कोई जगह नहीं, अवाम उन्हें इक़्तिदार पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी एक अरसा से सिंध कार्ड खेल रही है और नून लीग पंजाब के अवाम को यरगमाल बनाने की हमेशा कोशिशें करती आई है, मगर अब दोनों रवायती सियासी जमातों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अवाम उन्हें मुसल्लत कर चुके हैं, अब मुल्क भर में जीत सिर्फ PTI की होगी। पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को शरीफ और जरदारी ख़ानदान का सियासत से बोरिया बिस्तर गोल कर देगी।
جان چکی ہے، ان کے اوچھے جو ہتھکنڈے ہیں ان کو پہچان چکی ہے. اب یہ لوگ جو مرضی کر لیں، لوگوں کے دلوں سے یہ جو ان کی نفرت ہے، یہ جو ان کے جو کام ہے، یہ جو کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ لوگ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ گئے اور اس کا لوگ بدلہ جو الیکشن والے دن لیں گے. لوگ صرف اس انتظار میں ہیں کہ الیکشن والا دن آئے اور ہم اس دن اپنے جو اندر ہے ہم لوگ اپنے الیکشن بورڈ کا استعمال کر کے ان چوروں لٹیروں کو مسترد کریں اور پاکستان کوشش کریں انشاءاللہ پاکستان ایک ترقی کی طرف گامزن ہو اور پاکستان ایک ترقی کی پٹری پہ چل پڑے. لیکن ان خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. معروف سیاسی سماجی شخصیت چودھری مقبول حسین جردیو نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پر آج سرمایہ داروں، وڈیروں اور جاگیرداروں کا قبضہ ہے. پڑھے لکھے باصلاحیت لوگ آگے آتے دکھائی نہیں دے رہے. انتخابی عمل میں پیسے کے بے دریغ استعمال نے جمہوری سوچ رکھنے والے سیاسی کارکنوں کے لیے تمام راستے بند کر دیے ہیں، جو نہایت مایوس کن امر ہے. سیاسی پارٹیوں میں کارکنوں کو ان کی صلاحیت اور جدوجہد عوامی خدمت کے تحت نمایاں مقام دینے کی ضرورت ہے. پیسے کے بل بوتے پر سیاسی وفادار تیار کرنے کی کوشش نے ہماری جمہوری نظام کو نہایت کمزور کر دیا ہے. سیاسی جماعتیں اپنی صفوں میں جمہوریت کو مضبوط کریں تاکہ قوم کا جمہوریت پر اعتماد بحال ہو سکے. شیخو پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں. معروف سیاسی سماجی شخصیت خان فرید اقبال خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے الیکشن میں غیر جانبدار رہنا چاہیے. جب سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے حکومت بنانے کی کوشش کی گئی تب ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھا اور عوام کا اداروں پر اعتماد متزلزل ہوا. 8 فروری کے انتخابات شفاف نہ ہوئے تو ملک میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا. الیکشن کے حوالے سے موجودہ شکوک و شبہات کا خاتمہ کیا جائے اور الیکشن کمیشن نگران حکومت کی مدد سے انتخابی عمل کو مکمل شفاف و منصفانہ بنائے، جس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کے یکساں مواقع دینا ناگزیر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار رہنا ہوگا. شیخو پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے سابق پولیٹیکل اسسٹنٹ حاجی علی احمد صابر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ملک بھر سے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے جو عوام کی بھرپور تائید حمایت سے کلین سویپ کریں گے. عوام کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ہیں. جس طرح کے ہتھ کنڈوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف مختلف متنازع کیسز میں سنائے گئے فیصلوں کو عوام مسترد کر چکی ہے اور ان انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سابقہ اتحادی حکمران ملک کا امن تباہ کرنے اور بدترین مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. ملک میں روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں. شیخو پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے نائب صدر مرکزی انجمن تاجران کے لیگل ایڈوائزر احمد حسن پاشا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ نون لیگ کے امیدوار 8 فروری کے عام انتخابات میں ملک بھر سے شاندار کامیابی حاصل کریں گے اور نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ایشین ٹائگرز بنانے کا مشن مکمل کیا جائے گا. نون لیگ کا ہر دور حکومت ترقی خوشحالی کا دور تھا. پارٹی قیادت نے ہمیشہ ترقی کی سیاست کو فروغ دیا. پاکستان کے غیور باشعور عوام 8 فروری کو شیر کے انتخابی نشان پر مہر لگا کر پاکستان کی ترقی کے دور کا دوبارہ آغاز کریں گے. ہم عوام کے مسائل حل کرنے اور ملکی ترقی خوشحالی کی خاطر میدان میں اترے ہیں. شیخو پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں. مرید کے شہر کی سب سے بڑی شیخ برادری کے سربراہوں حافظ شیخ خرم جمال، حاجی شیخ ظہور احمد، شیخ نثار احمد، سابقہ کونسلر شیخ مخدوم چاہت نے برادری کے ہزاروں ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین گروپ کی حمایت کے امیدوار قومی اسمبلی این 113 رانا احمد عتیق انور ایم پی اے کے امیدوار چودھری ارشد ویر کی حمایت کا اعلان کر دیا. محلہ شیخا میں ایک بڑے جلسے میں اعلان کرتے حاجی شیخ مخدوم جمال نے کہا ہے کہ مرید کے تحصیل میں شیخ برادری سب سے بڑی برادری ہے جو سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین، سابق ایم این اے رانا افضال حسین پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ مقدمے کی سماعت کے اختتام میں غیر معمولی اور غیر معقول تاخیر ایک چیلنج ہے جو فوجداری نظام انصاف کی انتظامیہ کو متاثر کرتا ہے، اور کہا کہ یہ تفتیشی افسران اور وکلاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر ضروری اور بلا جواز تاخیر سے گریز کریں، بروقت انصاف کو یقینی بنائیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے جمعے کو اغوا کے مقدمے میں اپیل کے خلاف فیصلے میں لکھا، اس طرح کی تاخیر آزادی، منصفانہ ٹرائل اور مناسب عمل کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. جسٹس مندوخیل جنہوں نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کی جس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی بھی شامل تھے. ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ جلیل عباسی جیلانی نے آج تیسرے ہند
बहरुल काहिल फोरम के मौका पर ब्रसल्स में हस्पानवी वजीर खारजा होजे मैनुएल अल्बारीस बैनो जमलारीस से मुलाकात की। दोनों वज़राए खारजा ने पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान तरीक़ी ताल्लुकात का अदा किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और रवाबत और ताउन के नए रास्ते तलाश करने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने इलाकाई और आलमी पेश रफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और मुश्तरका चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया। हमने एंट्री लेवल के सरकारी मुलाजमीन को खुश आमदीद कहा जो इस वक्त सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर में लाहौर में ज़ेर तरबियत हैं और पेंटिशन टूर के लिए एक इंटरएक्टिव सेशन में एडिशनल सेक्रेटरी खारजा और तर्जमान सफ़ेर मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम पहलुओं का खाका पेश किया और उनके सवालात के जवाब दिए। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अहम इंतखाबात 2024 सिक्योरिटी ICCP और डॉक्टर अकबर नासिर खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस्लामाबाद में अहम इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से जामिया लाया अमल तरतीब दिया गया और अज़म किया गया कि ज़िला भर के पोलिंग स्टेशन पर भरपूर सिक्योरिटी इक़दाम किए जाएंगे। तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी को यकीनी बनाया जाएगा। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने काम की जगह पर खातून साथी को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम में मुजरिम पाए जाने के बाद बैंक मैनेजर पर आयद खिदमत से बर्खास्तगी के जुर्माने को बरकरार रखा है। अस्करी बैंक लिमिटेड ABL के साबिक मुलाजिम मोहम्मद मुनीर अख्तर मुलजिम की तरफ से काम की जगह पर खवातीन को हरासा करने के खिलाफ वफाकी मुहतसिब के फैसले के खिलाफ दायर की गई नुमाइंदगी को मुस्तरद करते हुए सदर ने कहा कि मैं बयान करदा वाक़यात मुलजिम के खिलाफ शिकायत को जब सबूत के साथ मिलाया गया तो हरासा करने के इल्ज़ाम के लिए मुलजिम का कसूर साबित हुआ। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने हफ्ता को कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक़्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की मजबूत हमायत को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म ऑफिस मीडिया विंग ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर बराए ख़ारजा तिजारत डॉक्टर थाई बिन अहमद अल ज़ेवदी से बात कर रहे थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को शादी केस में एक और जेल की सज़ा का ताल्लुक तो इस बात से है कि आया उसने और बुशरा बीबी ने शादी करने से पहले बीबी की तलाक के बाद काफ़ी इंतजार किया। दानियाल रसूल पहले इमरान खान और उनकी अहलिया पर भी हर एक पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और वज़ीर आज़म को मज़ीद 7 साल कैद की सज़ा के साथ इमरान खान की कानूनी मुश्किलात बनने जा रही हैं। हफ्ते का तीसरा फैसला इसकी मौजूदा बीवी बुशरा बीबी से उसकी शादी से मुतल्लिक है और क्या रस्मी तौर पर शादी करने से पहले इस जोड़े ने बीबी को अपनी साबिका शादी से तलाक के बाद काफ़ी इंतज़ार किया था। ये ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है जो जज इस मुकदमे में दे सकता था और अदालत ने सज़ा के हिस्से के तौर पर शादी को भी कल अदम करार दे दिया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद ज़िला हैदराबाद का थाना सीरी क्राइम में पहले नंबर पर चरस अफीम मंशात जुआ खुलेआम पुलिस की सरपरस्ती में मुख्तलिफ इलाकों में जारी। सैरी थाने की हदूद में जुआ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल मगर तमगा इम्तियाज़ SSP हैदराबाद लाइलम वीडियो में मासूम बच्चे जुआ खेलते हुए देखे जा सकते हैं। गाजी मोदी के मुकाम पर बदराम जवारी खुदा बख्श उर्फ खद्दू पुलिस के लिए कमाई का जरिया बन गया। खुदा बख्श उर्फ खद्दू ने थाना सेरी की हदूद में खुले आम नौजवान और नाउमर बच्चों को जुआ की लत लगा दी। 10 से 18 साल की उम्र के बच्चों से पर्ची जुआ के घनौने कारोबारी से ख़राब करने लगा। मुतअद्दिद नौजवान जुआ खेलने के लिए चोरी तक करने लगे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपए की रकम जुआ पर लगाने लगे हैं। जुआ की सरपरस्ती शाहरुख नामी पेटर कर रहा है जो सैरी थाने की हदूद में मंशात चरस अफीम आइस हीरोइन मीमपुरी गुटका समेत दीगर अशिया खुले आम सैरी थाने की हदूद में फरोख्त कर रहा है। सैरी थाने की आवाम को SSP से कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी GPO चौक में बिल्डिंग की छत से बर्फ गिरने के नतीजे में 2 गाड़ियां दब जाने से मुकम्मल तबाह हो गई हैं जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें एक शख्स शदीद जख्मी जिसको मौजूदा सिविल डिफेंस के एहलकार नजीबुल्लाह और मोहम्मद शहजाद और रेस्क्यू की टीम इंतजामिया एहलकारों ने बरवकत कार्रवाई करके जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गाड़ी में फंसे शख्स को गाड़ी काट कर निकाला गया।
और फौरी तौर पर नजदीकी एम्बुलेंस हमरा रेस्क्यू व्हील और इजाफी स्टाफ की मौका पर रवाना किए गए। रेस्क्यू स्टाफ ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए गाड़ी में फंसे शख्स को रेस्क्यू करके शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल मरी शिफ्ट कर दिया, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी शख्स को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बिलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद पीपल्स पार्टी हैदराबाद में पावर शो के लिए तैयार। हैदराबाद मेहरान ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। आज शाम बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे और कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जलसागाह में 20,000 के तकरीब कुर्सियां लगाने का बताया जा रहा है। 10 कंटेनर रख कर स्टेज बनाई गई है। कारकुनान जलसेगाह की तैयारियां में मसरूफ़ अमल हैं। पार्टी परचम पिना फ्लैग से जलसागाह को सजाया जा रहा है। जलसेगाह में बड़ी LED भी लगाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं मोरखुंडा से। महर मुर्तज़ा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साइद अजीज की हदायत पर जिली पुलिस का फ्लैग मार्च। तर्जमान पुलिस ननकाना साहब SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। ननकाना साहब फ्लैग मार्च का आगाज़ थाना सदर ननकाना से हुआ, जिसने सारे शहर का चक्कर लगाया। ननकाना साहब फ्लैग मार्च में DSP सर्कल ननकाना, DSP लीगल, एलियट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान जवानों की शिरकत। तर्जमान ननकाना साहब फ्लैग मार्च का मकसद जनरल इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है। SP इन्वेस्टिगेशन ननकाना साहब कानून का नफाज और अमन का क़याम अहम जिम्मेदारी है। नाकुस अमन का सबब बनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की मुसल्लह मुलजमान की सावन बरादरी के घरों पर हमला, एक नौजवान जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। कादरपुर के नवाही इलाके गाँव जांडर वासियों में मुसल्लह मुलजमान की फायरिंग के नतीजे में बेलू सावन जाँ बहक हो गए। बच्चों और खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी। जख्मियों और मकतूल की लाश को फायरिंग की वजह से अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सका। ज़राए जाए वक़ुआ पर ताहाल पुलिस नहीं पहुंच सकी। फायरिंग का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं सादुकी से। सादुकी के इलाका राजा गांव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसा ने मुखालफिन की नींदें उड़ा दी। चौधरी मनसब अली विरक की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत में कामयाब जलसा मुनक्किद करवाया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हल्के में एक के बाद एक कामयाब जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में राजा गाँव में चौधरी मनसब अली विरक की तरफ से चौधरी जुल्फ़कार अली भिंडर और चौधरी अख्तर अली खान की हमायत में कामयाब जलसा मुनक्किद करवाया गया। राजा गांव जलसा में पहुंचाते पर चौधरी मनसब अली विरक ने और चौधरी जवेद मलक, हाजी बशारत अंसारी, चौधरी सगीर मिनहास, अराना वैस, हसन जट, ज़ीशान अली डोगर, चौधरी कुर्बानवीर, चौधरी फ़याज़ डोगर, चौधरी कुर्बान डोगर, चौधरी बहादुर डोगर, चौधरी फ़याज़ बडर, सिराज मुगल, मलक जवेद, मीन अमजद, चौधरी सफदर डोगर, जवेद कादरी, चौधरी जुल्फ़कार भोलर की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली चौधरी जुल्फ़कार अली भिंडर और उनके साथियों का फूलों की पत्तियां निछावर करके वालिहाना इस्तकबाल किया गया। राजा में इस्तकबाल में घोड़ियां नचाकर और आसमान को आतिशबाजी से रंगारंग करके इस्तकबाल को दुबाला कर दिया गया। राजा गाँव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस जलसे ने मुखालफिन की नींदें उड़ा दी। चौधरी जुल्फ़कार अली भिंडर ने जलसे के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मैं चौधरी मनसब अली विरक की तरफ से राजा गाँव में कामयाब जलसा मुनक्किद करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि राजा गाँव में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जिस जोश और जज्बे के तहत जलसा में शिरकत करके जलसा को कामयाब बनाया है वो बेमिसाल है। चौधरी जुल्फ़कार अली भिंडर ने कहा है कि आइंदा का दौरा मुस्लिम लीग नून का है और मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से हासिल करेगी और इस मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इल्ज़ामात की सियासत नहीं करती बल्कि खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखती है। जलसा के अख्तिताम पर आने वाले मेहमानों के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। खानका डोगरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 144 मियाँ इमरान साबर डोगर का जंडोवाली गांव में तारीखी इस्तकबाल। गांव की अराई और भट्टी बरादरी ने मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। हल्का PP 144 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मियाँ इमरान साबर डोगर की पोजीशन दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। उनकी जीत यकीनी नज़र आ रही है। मियाँ इमरान साबर डोगर के जंडवाली गांव पहुंचने पर गांव के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपने महबूब कायद मियाँ इमरान साबर डोगर का अनोखे अंदाज में शानदार इस्तकबाल किया। गांव के लोगों ने जगह जगह इस्तकबाल करके अपनी हमायत का ऐलान किया।
डेरा चेयरमैन मियां मोहम्मद असलम पहुंचने पर गांव के लोगों ने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए फूलों की पत्तियां और नोटों की बारिश करके मियां इमरान साबर डोगर का इस्तकबाल किया। मियां इमरान साबर डोगर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जंडवाली गाँव के लोगों सुई गैस की नेमत से महरूम हैं। अगर अल्लाह पाक ने जीत दी तो सबसे पहले इस गांव में सुई गैस दी जाएगी। इमरान साबर डोगर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर बताते हुए कहा कि अब की बारी नई सोच को वोट दो, बिलावल भुट्टो को वोट दो। इस मौका पर चौधरी महर फकीरिया ग्रुप, मोहम्मद आसफ फराई ग्रुप, साबिक मेंबर मोहम्मद यूनुस ग्रुप ने अपनी बरादरी और साथियों समेत मियां इमरान साबर डोगर की हमायत का ऐलान किया। शेख सिकंदर खान का डोगरा। राजा में इस्तकबाल में घोड़ियां नचाकर और आसमान को आतिशबाजी से रंगारंग करके इस्तकबाल को दुबाला कर दिया गया। राजा गांव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस जलसे ने मुखालफिन की नींदें उड़ा दी। चौधरी जुल्फ़िकार अली भिंडर ने जलसे के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मैं चौधरी मनसब अली विरक की तरफ से राजा गांव में कामयाब जलसा मुनक्किद करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। उनका मजीद कहना था कि राजा गांव में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जिस जोश और जज्बे के तहत जलसा में शिरकत करके जलसा को कामयाब बनाया है वो बेमिसाल है। चौधरी जुल्फ़िकार अली भिंडर ने कहा है कि आइंदा का दौरा मुस्लिम लीग नून का है और मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से हासिल करेगी और इस मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इल्ज़ामात की सियासत नहीं करती बल्कि खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखती है। जलसा के अख्तिताम पर आने वाले मेहमानों के लिए खाने का भी अहतमाम किया गया।